Hello everyone. Now, in the previous video we understood how to solve the rational inequalities using the sign scheme of the rational expressions and the rules of inequations. We understood that particular process, right? It was easy, and probably I left the session with the problem for the homework, so I'm just solving that question again here. Those of you who could solve the question, it was very good, and the people who could not solve the question, they can refer the solution now. So I'm just solving it a bit fast. I get everything on the left side to obtain, right? You cannot go for the cross multiplication here because this x minus 2 and x minus 1 to x minus 7 are not always positive or always negative. They have a sign scheme which is changing for different values of x. And now we take the LCM. So if I take the LCM here, this implies 2x square minus 12x. Hopefully I'm not making a calculation mistake. Minus, right? So we get this step now. I have taken the LCM here directly, and now this will simplify to, this implies, this gives you this condition. And now this is an interesting situation because the quantity in the numerator, this quantity is, this has a negative discriminant and leading coefficient is positive, so that means this is always positive, right? So what we do is, now we use the number line for this expression. So this is your number line. हम चेक करेंगे न्यूमरेटर कहाँ जीरो बनेगा. इनफैक्ट कहीं नहीं बनेगा बिकॉज अभी हमने देखा इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो देर इज़ नो वैल्यू ऑफ एक्स विच यू गेट फ्रॉम द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर इज इनफैक्ट ऑलवेज पॉजिटिव. इफ आई लुक एट द डिनोमिनेटर, कहाँ जीरो होता है, तो यू हैव सर्टेन पॉइंट्स लाइक 1, 2 एंड 7. So 1, 2, 7. यहाँ पे होलो सर्कल्स आ गए. And let's say if I plug in some value, for example x equal to 8 अगर हम रख के देखें, इसमें प्लग इन करें, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही आएगा एंड डिनोमिनेटर बिकम्स पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव. सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू. एवरी क्वांटिटी हैज़ द मल्टीप्लिसिटी 1, तो सबके अबाउट साइन चेंज हो रहा होगा. सबके अबाउट साइन चेंज होना मतलब ऑल्टरनेट साइन आएंगे. और नाउ यू गेट द आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मुझे वो रीजन ढूंढना है जहाँ पे सॉलिड सर्कल हो और जहाँ पे पॉजिटिव साइन हो. सॉलिड सर्कल तो कोई है नहीं, पॉजिटिव साइन इन दो जगह पर है. तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स x बिलोंग्स टू 1 to 2 union 7 to infinity. So this was the answer for the previous question that we were solving. Now coming down to the system of inequations. Now we come down to the real part, the system of inequations. Practically जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस हमको मिलते हैं वो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस पे ही मिलते हैं. मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टाइम द एप्लीकेशन इज ऑन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस एंड यू फाइंड देम इन मेनी चैप्टर्स. बेसिक मैथ्स में पर्टिकुलरली अभी हम मॉडुलस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस देखेंगे. लॉगरिथम्स में हम जब इक्वेशंस इनइक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस देखेंगे. तो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस? अ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस कंटेन्स two or more inequalities, which must be satisfied by the variable x, generally we assume that the variable is x. So let's say the variable x simultaneously, which means, simple language में this implies you have to take the common values of
all the solution sets of the inequations, all the solution sets of inequalities in the system, all the solution sets of inequalities of the system. So this is the basic idea. सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस में आपके पास दो या दो से ज़्यादा इनइक्वेशंस होंगी और आपको सारी इनइक्वेशंस अलग अलग सॉल्व करनी है और फिर उन सब की कॉमन वैल्यूज देखनी है. द कॉमन वैल्यू ऑफ ऑल द सॉल्यूशन सेट्स विल गिव यू द आंसर. सो दिस इज द की strategy that will involve in solving the questions. This is the condition. We'll solve the equation separately and then take the common values. So a simple two steps for solving the system is: step 1, solve all inequalities, solve in all inequations separately. And step 2, take the common solution, take the common solution from all the sets, from all the sets मतलब जितनी भी इनइक्वेशन है सबका कॉमन सोल्यूशन. तो अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कॉमन सोल्यूशन कैसे देखते हैं ना. तो आई विल जस्ट गिव यू सिंपल आइडिया हाउ डू वी टेक द कॉमन वैल्यूज, हाउ डू वी टेक द कॉमन सोल्यूशंस. लेट्स से सपोज दिस इज द नंबर लाइन and let's say this value is -3, this value is suppose -1, this value is 2, and suppose this value is 5, right? And suppose you have two solution sets. One solution set is -infinity to -1 union 2 to 5. And the second solution set is suppose -infinity to -3 union 2 to infinity. And suppose you have to take the common values of these solutions. You have to take the common values. तो how do we take the common values? पहले ये समझ लेते हैं. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों. जब भी आपको कॉमन सोल्यूशन देखना हो तो what you should do is, let's say what you have to do is on the number line, single number line, same number line पे mark all these values -1, 2, 5, -3. 2 has already been taken. So let's say I draw the number line, and on the number line I mark these values. So I mark 0, -1, 2 and 5. अच्छा, while plotting all these points, do not worry about hollow or solid circle. मतलब आप सबको सॉलिड ही बना दो, सब सॉलिड ही बना दो ना. तो डू नॉट वरी अबाउट दिस पार्ट. मैंने भी सबको सॉलिड बना दिया यहाँ पे. ये हम बाद में कवर कर लेंगे ना. अब देखो क्या करना है. दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्यूशन सेट की तरह नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. तो लेट्स से अगर हम सॉल्यूशन 1 की बात करें, आई एम यूजिंग द ब्लू कलर फॉर दिस. तो सॉल्यूशन सेट 1 कह रहा है -infinity से -1. तो -infinity से -1 इज लाइक दिस. यहाँ पे हॉलो सर्कल 2 to 5, 2 पे हॉलो सर्कल, 5 पे हॉलो सर्कल. तो हमको हॉलो सर्कल यहाँ पे कवर करना है, यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाने, यहाँ पे हॉलो सर्कल नहीं बनाने. ये जो नंबर लाइन बनाई शुरुआत में नहीं बनाने. एंड नाउ आई टेक द सेकेंड सोल्यूशन विच आई लेट्स से यूज पिंक कलर फॉर दैट. So let's draw the second solution set. Now the second solution set is -infinity to -3, -3 पे hollow circle, and then 2 to infinity, 2 to infinity. So we have drawn this, right? Now you have to look at the common value. ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो दोनों में आती हूँ. तो यदि हम ध्यान से समझें तो अगर मैं इसको बाइफिकेट कर लूँ नंबर लाइन को,
तो कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें दोनों पिंक और ब्लू दोनों लाइंस आती हैं? तो क्लियरली आई कैन सी दैट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजन, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजन। इसमें -3 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि दो सॉल्यूशन, सपोज एक सेट में -3 है और एक में -3 नहीं है, तो दोनों का जब हम कॉमन वैल्यू लेंगे तो -3 नहीं आएगा। -3 तभी आ सकता है व्हेन इट इज कॉमन इन बोथ। तो -3 पे हम हॉलो सर्कल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? बिकॉज -3 जो है हमारे पास, -3 does not appear in the solution set S2। तो इसलिए वहां पे हॉलो सर्कल, कॉमन वैल्यू वो होगी जो दोनों में हो, किसी एक में नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, मतलब इफ अ कॉमन वैल्यू इज द वन, कॉमन वैल्यू मतलब हुआ, कॉमन वैल्यू मतलब जो दोनों में हो, मस्ट अपीयर इन बोथ, इट मस्ट अपीयर इन बोथ द सॉल्यूशन सेट्स, तो दैट इज कॉल्ड द कॉमन वैल्यू। अच्छा, तो ये एक मेरे पास कॉमन रीजन आता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज कॉमन है। फिर अगर मैं दूसरे रीजन में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि पिंक लाइन नहीं है। इसमें तो खैर दोनों ही नहीं है, तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं। अच्छा, 2 से 5 वाले में फिर कॉमन है, 2 से 5 वाले में फिर से कॉमन, दिस इज अगेन द कॉमन सोल्यूशन। और आप देखोगे 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो S1 और S3 दोनों में नहीं है, और S1 S2 दोनों में नहीं है। तो अगेन 2 डज नॉट अपीयर इन S2 एंड S3, तो देयरफॉर कॉमन में आने का मतलब ही नहीं है। एंड सिमिलरली 5 जो है ये डज नॉट अपीयर इन, 5 डज नॉट अपीयर इन S1, ये बच्चे S2 करते थे, सो मेक दिस S2, तो ये भी कॉमन में नहीं आएगा। कॉमन में तभी आएगा जब दोनों में आता हो। कोई चीज़ अगर दोनों सेट में है तो कॉमन में आएगी, अगर किसी एक में है एक में नहीं है तो कॉमन में नहीं लेंगे। तो 5 आप देखोगे, 5 डज नॉट अपीयर हियर, 5 डज नॉट अपीयर इन द सॉल्यूशन S1। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर हो गया इसका, therefore the common values are, answer is x belongs to -infinity to -3 union 2 to 5. This is the key idea. Solve the two inequations separately, draw a common number line, उसमें पॉइंट्स कॉमन मार्क करेंगे। वी विल नॉट वरी अबाउट हॉलो सर्कल और सॉलिड सर्कल वाइल प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। हाँ, जब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन लिखोगे तो दोनों में हॉलो सर्कल या सॉलिड सर्कल का ध्यान रखना है। अगर कोई वैल्यू किसी एक सेट में नहीं है तो वो कॉमन में नहीं आ सकती। कॉमन में सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब वो दोनों में कॉमन है। दिस इज द रूल। इफ अ वैल्यू इज कॉमन इन बोथ द सॉल्यूशंस ओनली देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉमन सॉल्यूशन, otherwise it cannot be included. So now let's take a practical problem. Let's start with the actual question. कैसे आते हैं? तो now read this question carefully. You have to find the values of x that satisfies the two conditions. And मतलब मैंने आपको बता रखा है, this word and मतलब होता है common value. It implies intersection. तो which value of x satisfies the two conditions simultaneously? So let's start with the first inequation. The first inequation is x square plus 6x minus 27 greater than 0, and this symbol is and. The second one is x square minus 3x minus 4 less than 0. Okay, so what we do is I write this as by factorizing this you get x plus 9 x minus 3 greater than 0, and I draw the sign scheme of this expression. This is a rational function, so numerator 0 कहाँ पे होगा? Numerator will be 0 at x equal to -9 and 3, तो यहाँ पे आ गया -9 and 3। ठीक है, और कोई वैल्यू डाल के देखते हैं। तो लेट्स से मैं इसमें से एक वैल्यू रख देता हूँ इसमें, x इक्वल टू 5 सपोज। तो यदि हम x को 5 डाल देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, है ना। 9 + 5 इज पॉजिटिव, 5 - 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव,
So overall I get a positive value. So let's put a positive sign here. सबकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है, तो ऑड मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज होगा, तो वी गेट अ नेगेटिव साइन एंड देन वी गेट अ पॉजिटिव साइन. एंड दिस इज द साइन स्कीम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा? तो सोल्यूशन सेट फॉर दिस विल बी x बिलोंग्स टू -∞ to -9 यूनियन 3 to infinity. ठीक है. नाउ इन द सेम वे I solve the second inequality. Let's say I change the color. So as far as the second inequation is concerned, this is again x minus 4 into x plus 1 less than 0. If you do not want to factorize, आप मत करो, हम इसको बिना फैक्टराइजेशन के भी कर सकते हैं ना. Let's remove this. Let's say I do not factorize this. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो अभी भी रैशनल फंक्शन तो है ही. तो अब हम देखते हैं कि भाई न्यूमरेटर कितना होगा. तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी ये पता करते हैं. तो न्यूमरेटर 0 कब होगा? जब x² माइनस 3x माइनस 4 0 हो, और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते तो आई गेट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दिस विल गिव यू 3 प्लस माइनस 5/2 विच इज सेम एज 4 और -1. These are the values of x. ठीक है. तो न्यूमरेटर यहाँ पे 0 है, डिनोमिनेटर है ही नहीं. तो नाउ वी ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर दिस पार्ट. सो दिस नंबर लाइन लुक्स लाइक यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा. 4 से बड़ी वैल्यू पे अगर हम रख के देखें, इफ़ आई पुट अ वैल्यू ग्रेटर देन 4 हियर, ठीक है, लेट्स आई पुट x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 हम इसमें डाल के देखते हैं. तो मेरे पास लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? The value of this expression becomes a positive value, and this will be a positive value. This will be in fact 25 minus 19, which is 6. This is a positive value. This is odd है सबका मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ साइन चेंज नेगेटिव, यहाँ पे साइन चेंज पॉजिटिव. और इनइक्वालिटी में पूछा था साइन स्कीम ओरिजिनली वॉज लेस देन 0. तो लेस देन 0 मतलब हो गया x belongs to -1 to 4. So this is the solution set of the second inequation, and now you have to take the common value. तो अब common value देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं. नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज मार्क करोगे. मार्क दिस, दिस, दिस एंड दिस. तो लेट्स मार्क these values and we'll not bother about the hollow circle or the solid circle. We'll just mark the values 3, 4. ठीक है. और अब 4 से अब पहली इनइक्वेशन को प्लॉट करते हैं. आई एम यूजिंग द सेम कलर जो कि इनइक्वेशन सॉल्व करने के लिए. आई एम यूजिंग द रेड कलर फॉर दिस. तो पहली इनइक्वेशन बच्चों कह रही है -∞ से -9. सो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इनइक्वेशन, -9 पे ओपन. सेकेंड इनइक्वेशन वो और यूनियन 3 to infinity, 3 to infinity. ये तो पहली इनइक्वेशन हुई. अब दूसरी पे चलते हैं. दूसरी पे ग्रीन कलर लेते हैं. -1 से 4. द सेकेंड वन इज -1 to 4 और ये ओपन में. तो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन जहाँ पे दोनों इनइक्वेशंस आ रही हैं. तो अगेन हम आराम से देख सकते हैं कि ये कॉमन वैल्यू जो है ये आप देखोगे इस रीजन में दोनों लाइंस आती हैं, इस वाले रीजन में ना. दिस इज द रीजन. और इसमें 3 इंक्लूड नहीं हो पाएगा बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस फर्स्ट इनइक्वालिटी. 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड इनइक्वालिटी. तो दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे. कॉमन में दोनों ना तो 3 आ पाएगा, दोनों में कॉमन है, ना 4 कॉमन है दोनों में. तो योर आंसर बिकम्स x belongs to 3 to 4. This is the answer of this particular problem. This is the common value. And if I verify the options now, so you get the C option. This is the answer. ठीक है. तो दोनों इनइक्वेशन अलग अलग सॉल्व करनी है और फिर एक साथ कंबाइन करना है उनको. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज टू सॉल्व दीज टू इनइक्वेशंस, तो सबसे पहले तो पहले वाली को देखते हैं. दिस इज 5x plus 2 less than 3x plus 8, and second वाली है x plus 2 upon x minus 1 less than 4. These are two inequations. ठीक है. तो अब मैं पहले वाली को सॉल्व कर रहा हूँ. लेट्स से आई यूज पिंक कलर फॉर दिस. सॉल्विंग द फर्स्ट वन, आई गेट 2x. मैं इसको इधर ले रहा हूँ और 2 को राइट पे भेजता हूँ. तो 2x इज ग्रेटर देन 2x is
less than 6. Since 2 is a positive number, I can divide both sides with 2. So x is less than 3. So this gives you x belongs to minus infinity to 3. तो नंबर ठीक है. अब दूसरी को देखते हैं. दूसरी से मेरे पास आता है, नाउ आई कैनॉट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गलत हो जाएगा ना, यू कैनॉट गो फॉर दिस अप्रोच, ये तो गलत है. तो मुझे 4 को इधर लाना पड़ेगा. आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन. लेट्स से x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 लेस देन 0 gives us x plus 2 minus 4x plus 4 upon x minus 1 less than 0, and if I simplify this I get 6 minus 3x upon x minus 1 less than 0. Now this is a rational expression. तो इसकी मुझे साइन स्कीम चेक करनी होगी. इसके लिए मुझे देखना होगा कि भाई न्यूमरेटर कब 0 होता है. तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 implies x is equal to 2, denominator equal to 0 implies x is equal to 1, and now I draw the number line for this. न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग सॉलिड सर्कल, डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं. लेट्स से आई चूज x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो आई गेट न्यूमरेटर बिकम्स नेगेटिव, 6 माइनस 9 इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विच इज़ अ नेगेटिव नंबर. तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्कीम है इसकी नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. सबकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो साइन चेंज होगा, 2 के अबाउट प्लस और 1 के पहले माइनस. दिस इज द साइन स्कीम ऑफ द सेकेंड इनइक्वालिटी. मुझे चाहिए था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी साइन स्कीम आ गई है ना. आई वॉन्ट दिस एक्सप्रेशन टू बी लेस देन 0. तो लेस देन 0 कहाँ पे हुआ? दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1 यूनियन 2 to infinity. This is the solution set of the second inequation, and this was the solution set of the first inequation. And now you have to take the common value. So again we draw the number line. On the number line we'll mark all these values 3 plus 1 and 2 without bothering about hollow or solid circle. तो लगा देते हैं यहाँ पे, this is 1, then you have 2 and you have 3, and now we'll draw these inequations on the number line, the solution sets on the number line. तो पहली इनइक्वेशन कह रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक. तो दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट इनइक्वेशन. दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू 3 पे ओपन. सेकेंड इनइक्वेशन कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 और फिर 2 से इन्फिनिटी, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन वैल्यू. ऐसा रीजन जहां दोनों सेटिस्फाई करते हो. तो अगेन यू कैन वेरी वेल सी दैट एक तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन है दोनों में. दिस रीजन इज कॉमन टू बोथ, है ना. 1 कॉमन नहीं आ पाएगा क्योंकि 1 दूसरे में नहीं, तो यहाँ पे होलो सर्कल. और एक जो रीजन कॉमन है दोनों में वो है 2 से लेके 3 वाला, और 2 और 3 भी कॉमन में नहीं आएंगे, होलो सर्कल. तो माई आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3. नाउ दिस इज द फाइनल सोल्यूशन of this particular inequation. And again if we verify the options, minus infinity to 1 union 2 to 3, minus infinity to 1 union 2 to 3, so that gives you the first option only. This is the answer. So now we take the last problem for a system of inequation. This is the most common occurring system of inequation. ज़्यादातर इसी फॉर्म में आपको मिलेगा. And it's commonly called a double inequation. This is called double inequality. तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? आपको सिंपली इसको 2 में स्प्लिट कर लेना. मतलब a लेस देन b लेस देन c, या लेट्स से a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, ये 2 कॉमनली अकरिंग फॉर्म्स हैं डबल इनइक्वेशन के. यहाँ लेस देन इक्वल टू हो सकता है, कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस कंडीशन इम्प्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू b, ये तो होना ही चाहिए.
and b is also less than c. So that means you get two inequation. This is one inequation, this is second inequation. तो this double inequality actually contains two different inequations in it, और बीच में एंड है, मतलब कॉमन वैल्यू लेनी है. इसी तरह से यदि हम इसको देखें तो इसका मतलब हुआ a should be greater than b and b should be greater than equal to c. This is a double inequality. ठीक है. तो जब भी डबल इनइक्वालिटी हो तो पहले आप उसको दो अलग अलग इनइक्वेशंस में ब्रेक कर लो एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. आई फर्स्ट ब्रेक दिस इनटू टू डिफरेंट इनइक्वेशंस. द फर्स्ट वन इज 3x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1. This should be greater than equal to 1. And the second one is 3x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1 should be less than equal to 2. We get these two inequations, है ना. और अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना है. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लेट्स से आई स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अगेन कीप इन माइंड दैट दिस x square plus 1 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. या तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो नेगेटिव आएगा और a की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर लॉजिकली भी देख सकते हो बिकॉज x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी रियल नंबर्स में, और फिर इसमें हम +1 कर देंगे तो ये पक्का 1 या 1 से बड़ा ही आएगा, विच मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. और यदि ये पॉजिटिव है तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना. मैंने आपको बताया था कि इन इक्वेशन को दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना अलाउड है. तो सिंस x square plus 1 is positive, this is a positive number, therefore I can go for the cross multiplication, है ना. I can go for the cross multiplication. This won't be incorrect. ये सही रहेगा क्वेश्चन. 3x square minus 7x plus 8 is greater than equal to x square plus 1. सब चीज़ों को लेफ्ट पे ले आते हैं. I get 2x square minus 7x plus 7 is greater than equal to 0. और अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड की साइन स्कीम देखनी है. तो साइन स्कीम कैसे देखेंगे इसकी? वी सिंपली गो फॉर, इसका न्यूमरेटर देखते हैं 0 कहाँ पे आता है. तो न्यूमरेटर 0 कहाँ पर आएगा? 49 है ना, बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac. तो सॉरी, we get x is equal to 7 plus minus b square is 49 minus 4ac, 856 upon 4. So now this is not a real value, है ना. ये नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, विच मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव. सो देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ x. न्यूमरेटर कैन नॉट बी 0. देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच विल मेक द न्यूमरेटर 0. तो इसका मतलब इसका साइन स्कीम अगर हम देखें तो कैसा बनेगा? न्यूमरेटर में कोई वैल्यू मिल नहीं रही, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो वी वोंट बी मार्किंग एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. और यदि हम इसमें अब x की जगह कुछ भी डाल के देखते हैं, इफ आई चेक द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो लेट्स से नाउ यू कैन प्लग एनी नंबर. लेट्स से आई पुट x इक्वल टू 0, if this implies positive sign, so this is a positive value. If I put x equal to 0, I get plus 7, which is a positive value. नहीं तो हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे ना. अगर आपको ध्यान हो तो यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है. तो मैं यहाँ से भी देख सकता था कि इसका साइन स्कीम हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है ना, हमेशा पॉजिटिव ही आता. खैर चलो, ये तो साइन पता चल गया पॉजिटिव है. नाउ वी टेक द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. अगेन आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई because this is a positive quantity. 3x square minus 7x plus 8 is less than equal to 2x square plus 2, which gives us x square minus 7x plus 6 less than equal to 0, which gives you x minus 1 into x minus 6 is less than equal to 0. अगर आप फैक्टराइज ना करना चाहो तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, है ना. यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय यूजिंग x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 अपॉन 2, है ना. वो वाले तरह से भी कर सकते हैं. तो खैर नंबर लाइन पे देखते हैं. वी गेट 1 एंड वी गेट 6. अगर आप इस तरह से जाते तो यहाँ से भी आपको नंबर लाइन के लिए न्यूमरेटर में दो वैल्यूज मिलती, 7 प्लस माइनस 5/2. सो दिस गिव्स यू 1 एंड 6. तो मैं अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता कि भाई न्यूमरेटर कहाँ 0 होगा, है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 कहाँ होगी,
तो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड 6 पे, ठीक है। नहीं तो हम फैक्टराइज करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसा हम देख रहे हैं ब्लू कलर में। एंड नाउ लेट्स पुट x इक्वल टू 7, यहाँ से एक वैल्यू उठा के डालते हैं 7, और यदि आप x को 7 डालोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सो आई गेट अ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव। सो नाउ दिस इज द साइन स्कीम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी साइन स्कीम बन गई। अब मुझे बताना है कि ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 कब होगी। आई वांट दिस टू बी लेस देन इक्वल टू 0, तो भाई अब लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ है, 1 से 6 के बीच में। तो योर आंसर बिकम्स फॉर दिस पार्ट, द आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू 1 to 6, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड इनइक्वेशन। एंड व्हाट वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट इनइक्वेशन। फर्स्ट इनइक्वेशन में मुझे चाहिए था कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा ना, ये चीज़ चाहिए थी। इसकी साइन स्कीम हमने बनाई थी और हमको चाहिए था कि भाई ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया था x बिलोंग्स टू -∞ to ∞। तो अब यदि हम कॉमन वैल्यू देखें तो ये वाला जो सोल्यूशन सेट है इसको मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, है ना। आई एम यूजिंग ग्रीन कलर फॉर दिस। सो दिस डिनोट्स दिस नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन आ गई -∞ से ∞। और दूसरे वाले को यदि हम देखें तो उसके लिए मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा 1 और 6, और ये सोल्यूशन बनेगा इसका 1 से लेके 6 तक। दोनों जगह क्लोज है तो आपको सॉलिड सर्कल बनाना पड़ेगा। एंड नाउ विच सोल्यूशन इज कॉमन टू बोथ, विच सोल्यूशन इज कॉमन टू बोथ। सो वेरी वेल यू कैन सी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सोल्यूशन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दिस इज कॉमन इन बोथ द केसेस, दीज वैल्यूज ऑफ x आर कॉमन इन बोथ। तो योर कॉमन सोल्यूशन बिकम्स x बिलोंग्स टू 1 to 6। दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस इज द आंसर। सो अ डबल इनइक्वेशन इज नथिंग, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस इज नथिंग बट 2 और मोर सेपरेट इनइक्वेशन जिनको अलग अलग सॉल्व करके हमें कॉमन वैल्यूज निकालनी है। कॉमन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आप नंबर लाइन पे, सेम नंबर लाइन पे सारे जो सोल्यूशन सेट्स है उनके एंड पॉइंट्स मार्क कर लो और सारी इनइक्वेशंस के सोल्यूशंस अलग अलग प्लॉट करके देख लो नंबर लाइन पे, एंड देन टेक द कॉमन वैल्यू। तो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट अगेन, और इनकी हमको कई जगह पे बच्चों जरूरत पड़ने वाली है।